نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سورة بقرة آية number 151. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ترجمہ: کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا آیات ہماری ویزکیکم وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم اور تو وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتابہ کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویعلمکم اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ما لم اس کی جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے۔ رسول کا سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کر کے سنانا ہے۔ یتلو، قرآن پاک لکھ کر نہیں دے دیا، پڑھ کے سنایا، تلاوت کر کے سنایا۔ پھر وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ کرنا، پھر قرآن پاک کی تعلیم دینا کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دینا۔ حکمت ہے ان کی سنت، کام کرنے کا طریقہ۔ علم ہے، پتہ ہے، نالج ہے، لیکن کرنے کا طریقہ نہیں پتا، معاملہ فہمی نہیں پتا، تو بھی اس ایکشن کا کوئی مطلب اچھا، مطلب وہ رسپانس ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ اب یہ ساری جو رسول کے کام تھے، اب وہ رسول کے بعد ان کی امت وسط ہونے کے ناطے ہم پر بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ چاروں کے چاروں کام۔ اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب یا ذریعہ نہیں جو یہ سب سکھائے۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ایسے رسول ہم تک آئے۔ اگر آیات کی تلاوت ہے نا، کیا واقعی میں انسان کی کامیابی کے لیے تلاوت ضروری ہے؟ تلاوت ہی تو ہے نا، تلاوت کا حق نہ ادا کرنا ہی اس پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ہمیں انسان کے لیے، ہمیں انسان کے علاوہ امت کی حیثیت سے جینا ہے، تو ہم پر بھی یہ سارے کام لاگو ہوتے ہیں، ذمہ دار ہم اس سب چیزوں کے۔ اور اگر ہم لوگ امت وسط ہیں تو ہماری پھر ذمہ داریاں اور کیا ہی ہیں۔ ایک بہترین امت کا خطاب جو دیا گیا ہمیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ تلاوت کر کے ہی نا۔ پھر آیات نا، ہماری آیات قرآن پاک میں لکھی ہوئی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کون سی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنائی، جو قرآن پاک میں آگے، وہ تو آگے۔ اس کے علاوہ احادیث ہیں، یہ احادیث قدسی ہوتی ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تک لائے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آئیں۔ اب یہ آیات بھی جو ہے نا، یہ صرف مطلب اس کی بھی کس قدر فضیلت ہے نا، کہ ایک تو وہ قرآن پاک میں لکھی گئی ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی تھی صحابہ کرام کو، پھر آگے سے ہم تک آئی پہنچی۔ اور کون لایا ان تک؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے، اور کس کے حکم سے لائے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو پھر پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ الفاظ اور حروف کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، کیونکہ ہماری روح میں نا ایک خوبصورت آواز کی نا پیاس رکھی گئی ہے۔ میوزک کیوں پسند ہے؟ کہ ہمارے اندر نا ایک خوبصورت آواز کی پیاس ہے۔ جب ہمیں قرآن پاک بھی خوبصورت آواز میں سنائی دیا جاتا ہے، تب بھی ہمارے دلوں کو سکون ضرور ملتا ہے۔ جب قرآن کو بہتر آواز میں پڑھیں گے نہیں، تو کوئی بھی غلط متبادل پکڑیں گے ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز، پھر وہ سانگس بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے قرآن پاک حدیث کا مفہوم ہے، اس لیے قرآن پاک کو مختلف
खूबसूरत आवाज़ों से जीनत दो। और अल्लाह ताला को बहुत खूबसूरत जो जो इंसान खूबसूरत आवाज़ में प्रैक्टिस करते हैं कुरान पाक की तलावत करने की, और जो कोई कुरान को खूबसूरत पढ़ने की कोशिश नहीं करे, तो वो हम में से नहीं। अब इतनी बढ़िया बात आगे, लेकिन कुरान पाक का जितना भी हिस्सा याद है उसको खूबसूरत आवाज़ में पढ़ने की ज़रूर कोशिश किया करें। ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि जो चीज़ हमारी महबूब को पसंद हो, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें उसकी पसंद के थोड़े से काम करने चाहिए ना। फिर जो हमारा जो बयान है ना, वो एक असर भी बहुत रखता है, एक जादू की तरह काम करता है। जैसे हम लोग आज बात कर रहे थे कि गाना सुन के रोना आ जाता है ना, बैठे बैठे रोने लग जाते हैं, या बाज़ दफ़ा हंसी आ जाती है। अगर हम वाकई में उम्मत वस की जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं, तो हमें भी इस कुरान पाक की अच्छे से तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद किरात को कान लगा कर सुनते हैं, हदीस का मफहूम है। तो जब जो चीज़ हमें पता है हमारा कोई अपना बहुत महबूब सुन रहा है, तो उसको तो हम बहुत ज़्यादा खूबसूरती से करेंगे ना। अल्लाह ताला किसी बात पर कान नहीं लगाते जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत पर लगाया करते थे। और फिर कुरान हदीस का मफहूम है, कुरान में महारत रखने वाला अ, नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों में होगा। नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते कौन है? ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल, ये चार जो फरिश्ते हैं, ये सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं। और फिर किरामन कातिबीन भी उन्हीं फरिश्तों में आते हैं। तो कुरान मजीद में महारत रखने से अल्लाह ताला इतना रुतबा दे रहे हैं, जैसे कहते हैं कि शॉर्टकट पता चल जाए, सिर्फ एक महारत ही तो रखनी है आवाज़ में। और साहिब कुरान से आखिरत के दिन कहा जाएगा, जैसे दुनिया में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते जाओ, और जहाँ मुकम्मल हो वही तुम्हारी मंजिल है। यह हाफिज कुरान के लिए कहा जाता है ना, कि वो पढ़ते जाएंगे, जहाँ तक वो पहुंच गए जन्नत के जिस दर्जे तक, वो उनका दर्जा हो जाएगा। जितना वो आहिस्ता दुनिया में पढ़ते थे, जितनी वो तरतील के साथ पढ़ते थे, उतना वो ज्यादा देर उनको लगेगी। और उनका जो जन्नत के लिए दर्जा है, वो ऊपर जाते जाएंगे, उनका कुरान अभी मुकम्मल ही नहीं होता होगा, और वो ऊपर चलते जाएंगे। तो इसी तरह से सिर्फ जरूरी नहीं कि हाफिज कुरान जिसने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है, हमें भी अगर कुछ सूरतें आती हैं, हम जितनी सूरतें याद की होंगी हम वो पढ़ते जाएंगे, और जहां पर हम लोग को स्टॉप हो गया वहां तक हमारा जन्नत का दर्जा आ जाएगा। इसलिए छोटी मोटी सूरतों को कोशिश किया करें कि हिफ्ज कर ली जाए। सिर्फ इसी वजह से कि हमें भी अल्लाह ताला जो है जन्नत में इस तरह से मुकाम देंगे। कुरान को अच्छी आवाज़ में पढ़ना है, फिर अरबियत लहजे में पढ़ना है। तजवीद मुखारिज इसलिए ज़रूरी हैं, वरना उसका मतलब गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने टोन के लिए उसके अल्फाज को कम, छोटा, लंबा या पतला नहीं करना। उसको जो हक है तजवीद का, उसके साथ अदा करना है उनके मखारिज को। बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है कि कुरान पाक को इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह वो नाजिल हुआ। हजरत अनस से पूछा गया तो बताया गया कि लंबा करके पढ़ते थे। उमर सलमा से रवायत है कि हर आयत के बाद रुकते थे। ये कुरान पाक के पढ़ने का तरीका है कि जहाँ पर लंबा करने का हक आ रहा है वहाँ लंबा करें, जहाँ पर रुकना है वहाँ पर रुकें। फिर एक और आयत का मफहूम है, कुरान हदीस का मफहूम है, कुरान पाक अरब के लहजे में पढ़ो, गुनहगार और अहले फिस्क मजहूल के लहजे में ना पढ़ो। जो गुनहगार और फिस्क वाले थे ना, वो मजहूल के तरीके से पढ़ते थे। मजहूल क्या होता है? जैसे अम, जैसे हमारी देसी आंटियां नहीं होती, उनसे पढ़ा नहीं जाता ना, जो बहुत बड़ी हो जाती है, उनको मुखारिज से पढ़ाएं तो वो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो मैं कोशिश करती हूँ अगर तुमसे पढ़ा जाए, वशकुरू ली लिखा हुआ है ना, वशकुरो ली ऐसे करके उनका लफ्ज होगा, को नहीं होगा, उनका को हो जाएगा। तो की भी नहीं होता, के होता है उनका लफ्ज, ली भी नहीं, ले वशकुरू ले, इस तरह का उनका मजहूल वाला तरीका होता है। तो इस तरह से गुनहगार और अहले फिस्क पढ़ते हैं। पढ़ते हुए हमारी पेशानी पे बल भी नहीं आना चाहिए, बल और पलके भी नहीं गिरानी बार बार, कि हम लोग टोन में आके जो है वो आंखें बंद कर लेते हैं, वो भी नहीं करना। और नाक से भी नहीं पढ़ना, मुंह टेढ़ा भी नहीं करना, और आवाज भरी भी नहीं जाए, गले से जोर जोर से आवाज भी नहीं पड़ी जाए कि बहुत ज्यादा चीख चीख के पढ़ा जा रहा है। नाक में ना ही गुनगुनी आवाज में पढ़ा जाए।
کیونکہ جو اس کے مخارج ہے نا اس میں پورا گلے سے آواز نکالی جاتی ہے، اگر ہم ناک سے آواز نکالیں گے اس کے مخارج پورے نہیں ہوتے۔ یہ حق ہے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرنے کا کہ کس طرح سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر اگر تعلیم کی بات کریں، تعلیم ہے کسی کو آہستہ آہستہ سکھا کر کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے، یعنی اس کے مفہوم کی، معنی کی، حروف کی تعلیم اور غور و فکر کرنا ہو تو بھی اس کو ٹائم ملے۔ اب یہاں پہ میں فوراً سے جو ہے اس کی آیت کا ترجمہ پڑھ دوں اور آگے پہنچ جاؤں، یا جو تفسیر میرے پاس لکھی ہوئی ہے میں اس کو ایسے ہی پڑھ کے آگے چلے جاؤں، ایک سمجھانے کے وے میں نہ پڑھو، تو آپ بھی اس کو جیسے نا ایک آٹو پہ وہ وائس ریکارڈ چلا ہوا تو وہ چلتا رہے، وہ چیز ہو جائے گی۔ تو اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ بھی آئے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ، جہاں پہ ایموشنز ہیں ان کو وہاں پہ ٹریگر کرنا، وہاں پر سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت دینا کہ سوچ سکیں۔ اور تعلیم کے لیے ضروری ہے استاد، شاگرد، کتاب اور ماحول۔ تعلیم میرے میں بھی ہوں گی تو میں اکیلے بیٹھ کے پڑھنا وہ تعلیم نہیں ہے جب تک میرے اوپر کوئی استاد نہیں ہوگا، اور اس استاد کی بھی کوئی تعلیم نہیں جب تک اس کے پاس شاگرد نہیں ہوگا، اس کے پاس کتاب نہیں ہے، الکتاب یہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے تو وہ بھی تعلیم نہیں ہے، اور ایک ماحول، ایک گیدرنگ میں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز خود سے کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی، ہم صرف استاد سے نہیں سیکھ رہے ہوتے بلکہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ استاد اس طرح سے آہستہ آہستہ پڑھائے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سیکھنے کا عمل آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، کوشش، صبر اور حوصلہ بھی ضروری ہے، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کو سکھانا بھی فرض ہے۔ جو ایک آیت بھی آپ تک پہنچ گئی، آپ پہ فرض ہے اس کو آگے تک پہنچائیں۔ استاد کے لیے ایک سیٹ پہ بیٹھ جانا اور بہت سارے بچے ہونا ضروری نہیں ہے کہ تبھی تعلیم دی جائے، ایک بھی ہے تبھی ہم لوگوں نے کنٹینیو کرنا ہے۔ جیسے میں یہاں پہ ویٹ نہیں کرتی، کوئی ایک بھی ہے تو میں نہیں ویٹ کرتی ہوں اور سٹارٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ ایک دفعہ گیپ آ جائے پھر وہ گیپ آ ہی جاتا ہے، شیطان جو ہے نا پھر وہ حاوی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم لوگ سست ہو جاتے ہیں۔ اور ماحول بہت زیادہ اثر کرتا ہے، جو چیز آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہو اس کا وہ سمجھ نہیں آتی، جب ہم لوگ مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اپنی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو آگے رکھتا ہے، آپ ٹیچر سے سن رہے ہوتے ہو، بعض دفعہ سننے سے جو ہے نا وہ اور طرح اور زیادہ فہم کھلتا ہے، وہ آپ کو چیزیں اور طرح سے پرسیو کرتے ہو۔ تو اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا تھا، ان کو کتاب نہیں دے دی گئی تھی صحابہ کرام کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی سکھایا گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کے سکھاتے تھے۔ اس لیے تعلیم کا عمل یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف خود پڑھتے رہنا، استاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں، استاد کی باتوں کا ہمیں بے شک میں بھی ہوں، اندھا آنکھیں بند کر کے بلیو نہیں کر لینا، کوئی چیز ڈاؤٹ فل لگی ہے اس کا ریفرنس آپ سرچ کریں اور اس میں اتھینٹسٹی دیکھیں کہ ہاں، اور پھر اگر غلط بات ہے تو مجھے بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی تھی تو یہ غلط ہے، انسان ہے، بشر ہے، اور آ، غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے نیکسٹ آتی ہے حکمت کی۔ حکمت کیا ہے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور دوسرا صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیژن لینا، سچویشن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کر کے دکھایا اور طریقہ بھی بتایا، ایک یہ حکمت ہے۔ اس لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ سے نا حکمت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں بعض دفعہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن نہیں لینا آتا۔ ایک اس کی دعا تھی، ہم لوگ کلاس کے سٹارٹ میں بھی پڑھا کرتے تھے، میں اس کی نا پکچر سینڈ کروں گی، آپ نے بلکہ کہا بھی تھا، مجھے پھر سے اسکپ ہو گیا مائنڈ میں۔ وہ ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نہیں، حکمت والی کون سی تھی؟ یہ رہی، ہاں سوری۔ ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، حکمن قوت فیصلہ ہے، وہ الحقنی بالصالحین اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین اور بعد میں آنے والوں میں میرے سچی ناموری باقی رکھنا۔
मतलब सच्चे लोगों में मेरा नाम शुमार रखना। वजअलनी, बना दे, मिन वरसती जन्नतिन नईम, मुझे नेमतों भरी जन्नत के वारिसों में से बना दे। तो ये जो दुआ है, इसको जो है वो लाजमी हम लोग अपने स्टार्ट में रखेंगे, ताकि हिकमत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग जब चले जाएं, अभी, क्योंकि हम लोग तो सतत जिंदा तो नहीं रहना। हमारे हमें कितना याद है अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स का, या उनके नाना दादी का। तो अगर अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम दुनिया में ऐसा कुछ कर जाए कि नेक लोगों में हमारा नाम रह जाए। नाम जो है ना, असल कमाने वाला जो नाम है, वो ये चीज है कि नेक लोगों में नाम कमाया जाए। ये अच्छा, तज़किया ऊपर रह गया, वही जक्की को वो पार करता है तुम्हें। पाक करने से मुराद पाक साफ करना भी है, इसके बाद नशो नुमा करना है, कि इंसान की खराब आदतें निकाल कर अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस नहीं करेंगे तो तज़किया नहीं होगा। हम कहेंगे ये खत्म कर दो, और कोई उसके ऑल्टरनेटिव में कोई न्यू चीज ना मिले, तो वो तज़किया नहीं होता। उस जो आपके अंदर बैड हैबिट है ना, उसको रिप्लेस करना है हमने एक चीज से। ये नहीं कि अब उस टाइम बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को सॉन्ग सुनने की आदत है, वो उस टाइम पर हम उसको क्या सॉन्ग नहीं सुनना, अब वो उस टाइम फारिग बैठा हुआ है, उसको कुछ ऑल्टरनेट देना है, ताकि वो उसकी सही से ट्रेनिंग हो। अब उस टाइम वो कुछ अच्छी बात चीज सुन सकता है, जिससे उसके अंदर जो है वो जब हिट्स आ रही है, अच्छी आवाज को सुनने की जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो रखी हुई है, वो जो चीज कमी पे पूरी करनी है, वो किसी पॉजिटिव वे से पूरी हो। कोई अच्छी नशीद सुन सकता है, कोई अच्छी किरत सुन सकता है, तर्जमा, कोई तफसीर, कोई अपने अच्छे स्कॉलर, क्योंकि अब हर स्कॉलर की अपनी एक आवाज़ की असर होता है। कोई स्कॉलर पसंद है तो उसकी भी कोई आवाज़ सुन सकता है, और फिर ऑफ कोर्स वो आवाज़ नहीं होगी, उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना बताना चाहती हूँ, मेरी बीएस लेवल में ना फ्रेंड्स थी। उनमें हम्म। से एक फ्रेंड को बताती थी कि ऐसे गाने सुनने का बहुत शौक था ना। तो हम्म। उसने अपनी आदत ऐसे खत्म की, उसने तोहा इब्न जलील के जो थे ना बयान सुनना शुरू कर दिया। नाइस। कहती मुझे आदत थी, मैं रात को सोने से पहले ना गाने सुनती थी। मैंने कहा इसको रिप्लेस करती हूँ, क्योंकि वो हुदा क्या थी, उसको क्लासेस देती थी। तो कहती सही। फिर मैंने सोचा कि मतलब किसी तरह करूँ। अभी तक माशाल्लाह में लगता है काफी ज्यादा उसके बयान उनके सुनती है वो। माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी बात है। मोस्टली को जो नहीं छोड़ पाते, उनको नशीद का ऑप्शन दिया जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर नशीद से भी हट जाते हैं। नशीद वो वाली सुनने के लिए जिसमें म्यूजिक ना हो, क्योंकि अब नशीद भी बहुत तरह की आ चुकी हैं। अच्छा, अभी बुराई को खत्म करने के लिए उसका नुकसान जानना भी जरूरी है। नेकियों को अंदर लाने के लिए उसका फायदा पता भी होना जरूरी है। कल परसों ना स्टेटस में क्योंकि स्टेटस में हमारे यहाँ अक्सर सॉन्ग्स लगे होते हैं अब उस स्टेटस में जस्ट एक सॉन्ग था, और मैं लगा के रख के सुन रही थी। फिर आई जस्ट क्लिक के, नहीं मैंने नहीं सुनना है, एक गलती से सुनी चीज वो और होती है। मैं उस स्टेटस को लगाए रख रही हूँ, और ये इससे मेरा नुकसान क्या है कि क़यामत वाले दिन मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। मुझे नहीं वो डलवाना है। मैंने उसी वक्त क्लिक करके उसको टैग किया। तो गुनाह से बचने के लिए उसका नुकसान पता होगा तभी इंसान छोड़ सकता है, और फायदा पता ना होगा नेकी का, तभी वो फायदा जो है वो करेगा। जब पता है कि कुरान पढ़ने से, कुरान सुनने से हमें जन्नत मिलेगी, और जन्नत में फिर हमें अल्लाह ताला की भी आ, आवाज में कुरान सुनने की हमें मौका मिल सकता है। तो इतना बड़ा फायदा है, तो हम लोग क्यों इसको गंवाएं ना, इतना बड़ा फायदा, इसको सोचना हमारे लिए जो है वो मोटिवेटिंग पावर हो सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, अगर कोई सलाहियत खराब हो जाए तो नुकसान होगा। और हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को नसीहत करते थे छोटे छोटे गुनाहों से बचती रहना। अच्छा, एक तज़किया में होता है ना पाक साफ होना। तो पाक साफ होना किस तरह से मुमकिन है ना, सबसे पहले एहसास हो कि गंदगी है और हम में गलती या कसूर है, उसका उसको फील करना सबसे पहले। जैसे हिटलर के ऊपर 25 कत्लाना हमला हुआ, जिसको सारी दुनिया गलत कहते थे, वो भी अपनी गलती का इतराफ नहीं करता था। एहसास जितना ज्यादा होगा कि गलती कुताही की है, उतना ज्यादा इंसान के चमकने, अ, उसका जो नफ्स है वो चमकेगा। इसलिए तस्लीम करना है कि कोई गुनाहगार
गुनाह किया है तो उस पे कोशिश करें कि गलती हमारे अंदर से दूर हो जाए, और उसके लिए बेशक जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े और हमें जान मारनी ही क्यों ना पड़े, एहसास और उस पे गलती दूर करने की कोशिश, ये है सबसे पहली सफाई। फिर दूसरी, अच्छा, उस सफाई में एक तो हम लोगों ने अपनी मेहनत करनी है कि बस जान मार देनी है। दूसरा, दूसरों का इंतजार नहीं करना कि वो हमें जो है वो आके एहसास दिलाएं और हमें मोटिवेट करें। हमें तीसरा, खुद को मेंटेन रखना है। ये इस तरह से हम लोग जो है ना सफाई खुद की कर सकते हैं, तज़किया खुद का कर सकते हैं। नबी के वसल्लम का तज़किया का तरीका पहले लोगों को पता नहीं था। तज़किया के लिए किताब नहीं, इंसान ज़रूरी है, जिसके लिए नबी वसल्लम को नाजिल किया गया। और तज़किया नफ्स की कामयाबी की इलामत है। और अब देखो ना, कुरान पाक से पढ़ के खाली आपका तज़किया नहीं हो जाएगा, उस कुरान मजीद की तालीम देने वाला कोई होगा तो ही वो आपका तज़किया भी मुमकिन है। और नेक्स्ट है फज़कुरूनी, बस याद करो मुझे, अज़कुरूनी मैं याद करूंगा तुम्हें, वशकुरूनी और शुक्र करो मेरा, वाला और ना तकफुरून, तो ना तुम ना शुक्री करो मेरी। अब यहाँ पर जिक्र की बात हुई है कि अल्लाह ताला का जितना जिक्र हम लोग करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी अपने महफिल में हमें याद करेगा। और जितना हम लोग शुक्र अदा करेंगे, जगह आता है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। तो इसलिए हमें हर लम्हे, हर मौके पे शुक्र अदा करना चाहिए। जो जितने मर्जी मुश्किल हालात है वहाँ पर भी हमारे शुक्र का लम्हा ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सारी सारी मुश्किलात ही हो जाए। नाशुक्री एक तरह से कुफर होता है। जब नामत नेमत मिल जाए तो इसका हक अदा करने के लिए शुक्र ज़रूरी है। जैसे अमामत मिली, अंबिया मिले, कुरान मिला, ये सारी हमारे लिए एक शुक्र गुजारी की नेमत, मतलब वो हैं, रीजंस हैं। और जिक्र और शुक्र दोनों ज़रूरी है। जिक्र जुबान से होता है और शुक्र अमल से होता है, इसीलिए दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। शुक्र अदा करने के लिए चीज़ की कदर करना भी ज़रूरी है, तभी हमारा जो अमल है उसको रिस्पॉन्स उस तरह से होगा। और ज़बान, दिल में और लोगों के सामने अल्लाह ताला का जिक्र करना है। जैसे नेमत हिदायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम व तरबियत का जिक्र है। सही शुक्र अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके होगा कि हम लोग जो ये जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की थी, अब उम्मत वस्त होने के खातिर नाते हम लोग वो करेंगे तो हमारे अमल से शुक्र होगा। जिक्र कर रहे हैं किस तरह हम लोग कुरान को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, और सीख रहे हैं, और जब सिखाएंगे तो वो क्या होगा, शुक्र भी होगा। अच्छा, अगर आदत को बदलने के लिए बदलना हो ना, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। कि सबसे पहले एक तो चीज़ को करना चाहिए। अगर हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो आदत नहीं जाएगी। और उसके लिए भी हमें माहौल भी चाहिए जो हमें अगर हम लोग अकेले करेंगे, अकेले कभी भी इंसान जो है वो नहीं होता, सही ट्रैक पे नहीं आता, वो दोबारा से भटक जाता है। उसको अपने साथ ऐसे दोस्त रखने हैं जो उसको उस पर चेक एंड बैलेंस रखें या अपने घर में से वो, इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है एक चीज़, कि जब आप तक पे कोई हक बात पहुंची है ना, आप अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स में से किसी को, मतलब बताना सबको है, लेकिन उनमें से कोई होगा जो आपके इस रिश्ते का साथी बन जाएगा। और फिर वो आपको हर पॉइंट पे अगर कहीं आप ब्लैक करोगे तो वो आपको पुश करेगा और आपको रिमाइंडर देगा। क्योंकि बाज दफा हमें पता सब कुछ होता है। इवन मैं खुद बाज दफा जब हमारे पास इमोशनल ब्रेकडाउन आता है ना, तो हम उस चीज़ों को ठीक से परसीव नहीं कर पाते, और जो हमारे पास इल्म होता है लेकिन हम लोग उसमें ना वो स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। बट उस पॉइंट में ना मेरी पार्टनर तो मेरी मामा होती हैं, और वो मुझे जो है ना इस तरह से बातें याद दिलाकर अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह से करना, ये देखो तुम्हारे पास ये नेमतें भी हैं। तो जैसे ना काउंसलर की ज़रूरत होती है हमें। तो अपने इर्द गिर्द, अपने सर्कल में ऐसे लोग लाजमी रखें जो आपको शुक्रगुजारी की तरफ लेकर आए। और आपकी जो बुरी आदत है उसको अगर आप रिप्लेस करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए एक अलार्म क्लॉक रिमाइंडर बन जाए कि कभी आपको उस तरफ आने भी ना दें।
اور ہمارے لیے اگر نیک ہم لوگ نیت چیز کو بدل رہے ہیں، عادت کو بدل رہے ہیں، تو اس میں ہماری نیت بھی خالص ہونی چاہیے۔ اور اصل دین بھی وہی ہے جو انسان خود لے، جس سے محبت کی جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے محبت کی ہے تو پھر ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ تب اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ تلاوت کے دوران ترجمے کو ریکال کیا کرے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط ہونے کا آ، توفیق عطا فرمائے، اور ہم صحیح معنوں میں امت وسط کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ اور یہ ہمارا جو سفر ہے اس قرآن پاک پہ سیکھنا، تعلیم سیکھنا اور سکھانا اور تزکیہ کرنے کا، آخری منزل تیسرے پارے تک جائے، اس کو ہم لوگ درمیان میں نہ چھوڑیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔